So yes, hello guys, good evening. Welcome back to Mardarshan by ITS. So guys, first of all, I congratulate each and everyone for being shortlisted for IOCL interviews. Today, I can see a large number of students are available for group discussion and group tasks. I can, for you, I have invited Mr. Saurabh Kumar Mandal. He has done his joint PhD from IIT Roorkee as well as IIT Kharagpur. He has done his masters from IIT Guwahati from transportation engineering in No, no, geotech transportation engineering. engineering. Geotech engineering. Okay, sorry. He has done his masters in geotech engineering from IIT Guwahati. So सबसे पहले मैं उन्हीं से अपना इंट्रोडक्शन कहने को कहूंगा और इंट्रोडक्शन के बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोजेक्ट किया था और क्या किया था और आज के जो गेस्ट फैकल्टी है आपको जो जज करेंगे वो मिस्टर सौरभ कुमार मंडल ही जज करेंगे. ओके, सो ओवर टू यू मिस्टर सौरभ. Yeah. Hi guys. सौरभ सर, सॉरी. Yeah, Hello, no sir. issues. Yeah. Hi everyone. So I'm Saurabh Mandal as introduced. So I did my BTech in civil engineering from Narsee Monjee in Mumbai, and after that I appeared for GATE as you guys have appeared, and I was working for Rail Vikas Nigam Limited, which is also a PSU, which you guys are also targeting. And post working for roughly 2 years, I found that something I wanted to do in academics. So that's why I switched over from working from PSU to working in getting into an academics. So I did my MTech, and during my MTech, I did my MTech from IIT Guwahati with specialization in geotech engineering. During my MTech, I was also a scholar, or you can say a researcher in France. It was in École Centrale de Nantes. I was working there also for 6 months. Post MTech, I joined my PhD at IIT Kharagpur, but this time I didn't join in civil engineering. So right now I'm in the School of Management. I am working in operations management, and my PhD is a joint PhD with IIT Roorkee. I'm also a part of Howard University, and I'm a project scholar of Howard University, where I'm working in public policy domain. And the policy is like how you can implement UN Sustainable Development Goals in a country like India. How is practically it can be measured and implemented. So I'm working with Howard University in that area, and that is how I have grown with the ages. As of now, I have been developing myself along with the I'm trying to develop myself with the time. So that's me, and that's how is sort of fundamental. Okay. So that was a nice introduction of yours, Mr. Saurabh sir. So starting with the group discussion, shall we start, right? Everybody's Yeah, ready? yeah. Yeah. Yes, So sir. just so before starting Yes. the group discussion, so there is two things. Being who has worked in an PSU, and now I'm working in School of Management. So I would like to give you two basic advices before you start the group discussion. One is whenever you're doing a group discussion, make sure everyone gets the equal right to speak. No one should cut each other. If you have anything to say, wait for the person to cut. Wait for the person to say. Do not cut the person if someone is speaking. And second is show leadership quality. Not rather than showing that you have a good voice or you are raising your voice. These two are different things. So show leadership qualities rather than getting too much of technicalities and too much of other side of the coin also. So these two important things I want to see in this group discussion, because you are targeting a company which is a very renowned company in PS, which is an IOCL, and they would look this type of parameters. So whatever the topic is, make sure you don't cut anyone. If someone is speaking, let them speak. Wait for them to end it up. Wait for them to wrap it up, and then you speak. And the second thing is show leadership qualities. So I hope everybody is clear, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are starting with the group topic. We are starting with the group discussion, and the topic for today's group discussion is Indian education is only for degree and not for knowledge. I repeat, the topic for today's group discussion is Indian education is only for a degree and not for knowledge. And what's the time frame for it? Mostly 30 minutes. 30 minutes. Okay. So, what we will do, we will break it in this way. It will be 25 minutes of GD and 5 minutes of conclusion statement. I hope it's clear. 25 minutes of GD, and the last 5 minutes will be the conclusive statement. Sure.
And please you repeat guys, the topic. Yeah. so the topic is Indian education system is just for education or just for a degree? Indian education is only for degree and not for knowledge. So we will start at 7:30 exactly, because we believe you need to jot down some of the points, so you can do some of the basic research. Don't use internet. I will requesting you again and again. Don't use internet, because this is the situation which will you have exactly in the when you apply for ISS. So don't use internet. Take your time. Think, brainstorm among yourself, like among yourself in the between you and your mind. But don't use internet. Take your time. Jot down the important points, and then we'll start at 7:30 right away. Sir, if you want to add some more tips, please suggest some more tips to our aspirants, whoever is going to face interviews. So you are muted. So the basic thing in an interview, in any interview, is be you. Don't fake it. Just don't fake it. If you're not able to answer, don't say. If you are getting confused, stop over there. But don't add anything which you puts you in trouble. Just be you. That is the basic thing, to ace any interview, be it a PSU, be it an MTech interview, be it anything. That's the basic, that's the basic human, what do you say? That's a human body language that is being captured by the HR peoples. That how you react when you speak. So just be you. Even in the GD, they will catch you very nicely that, how confident you are on a topic, or how confidently you are faking it. They will catch you directly, right away. So these are some of the things, which you need to take care right away. Because
whenever you start an interview now, and once you start getting frightened of, you will start going into unethical practices, like you start faking it off, you will try, you try to show them off that yes, I am the better candidate and so on. And that is the point, that is the time where you get into the trap. So just be you. Good evening. So we have all gathered here to discuss on the topic. Indian education is only for degree and not for knowledge. So I would like to present you the two perspectives to think of that statement. One which is the student's perspective, and other which is the university or faculty's perspective. As we know, universities have designed their course very well thoroughly. Exam procedures are designed as per the course, and there are also attendance criteria. So they have designed the degree so that every student who come to the college take degree with a set of knowledge. यहाँ पर में बहुत ही कंपलसरी है कि वो लोग दावा करते हैं इस चीज का कि डिग्री के साथ में वो लोग नॉलेज भी दे रहे हैं, पर अगर यहाँ पर में हम एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव देखें और एक स्टूडेंट का नहीं, हम अगर जनरल स्टूडेंट ग्रुप का पर्सपेक्टिव देखें, तो आज उनका कहना है कि यहाँ पर में जो डिग्री है वो सिर्फ डिग्री रह गई है, देयर इज नो नॉलेज। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को ब्लेम करना चाहूंगा कि वो लोग, मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ेंगे, दे जस्ट स्टडी टू पास द एग्जाम्स एंड नॉट टू गेन नॉलेज, क्योंकि सिलेबस आपके पास है, फैकल्टीज आपके पास है, आपको नॉलेज खुद को पढ़ के लेना पड़ेगा और फैकल्टीज को फॉलो करना। तो आई थिंक ये दो पर्सपेक्टिव पे हम डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा मेरे फ्रेंड के पॉइंट को। उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव है, एक टीचर का पर्सपेक्टिव है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव है। एक्चुअली स्टूडेंट का दिमाग तो हमेशा कंफर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ ही जाएगा, बट मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर सिर्फ डिग्री के लिए होती तो रिनॉन्ड कंपनीज के सीईओ लाइक गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ एक इंडियन ना होते विद अ डिग्री फ्रॉम इंडिया ओनली। सो आई वांट टू गो विद I think one more point that I want to cover here, that in schools we can see nowadays the practical knowledge we are providing in the schools is it's not sufficient to provide to the students. We can see now the teachers are teach students that what is the first law of Newton, but they don't provide what is going to be the significance, what is going to be its practical knowledge where we are going to see in our everyday life. Science knowledge is being provided to them, but not the practical knowledge that is being given to the students, that teachers needs to focus that where there these areas they need to see. मैं मेरे फ्रेंड को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूंगा, बिकॉज थोड़ा सा जो मतलब जो चीजें भी हमने सीखी हैं वो अब तक हमने जो चीजें सीखी हैं वो हमने बस इसी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से सीखा है, चाहे हमने स्कूल में सीखा हो या हमने कॉलेज में सीखा हो, बट जो भी हमने गेन किया है स्कूल के थ्रू या कॉलेज के थ्रू ही गेन किया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अब ज्यादा थियोरेटिकल से हटके थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपनाना चाहिए, जहाँ पे हम चीजें सही कर सकते हैं। मैं सभी सिस्टम है, इसमें मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि हम स्कूल से कॉलेज तक बचपन से हमें ज़्यादातर थियरी नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कराया गया है और प्रैक्टिकल में हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिला है जहाँ पे हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें। और फॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अच्छे कदम ले रहे हैं, जैसे कि जो हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया था 2020 में, जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग को कंपलसरी किया गया है, जहाँ पे एक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग जो अभी जो नए बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको मिल रही, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव स्टेप्स भी है जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं टोटली एग्री करूंगा मेरे दोस्त के पॉइंट से कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू किया गया है 2020 में वो प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच पे है और गवर्नमेंट एक अच्छी स्टेप्स ले रही है, लाइक 5+3+3+4 वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, सो दैट एवरीवन लाइक गोइंग टुवर्ड्स व्हाटएवर दे वांट, मींस वो सारा मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएगा, एक वर्साटाइल एनवायरनमेंट होगा, लर्निंग ग्रोथ होगा, उसके बाद होलिस्टिक कॉग्निटिव ग्रोथ होगा और ये एक हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो मैं एग्री करूंगा ये पॉइंट से।
बट मैं जो और मैं साथ में और एक स्टूडेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जिस तरीके जैसे से कि एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, यहाँ पे पेपर्स निकल रहे हैं। आप देखोगे कि एक दोस्त ने कहा था कि पढ़ते हैं एंड एक एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते, बट वो कॉलेज उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, उनके माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाते। अगर से आप हर साल सेमी पेपर निकालोगे, सेमी क्वेश्चन रहेंगे, एक सेट ऑफ पेपर रहेगा, तो अगर से उस तरीके से पेपर निकलेगा तो कोई भी स्टूडेंट एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते पहले पढ़ के ही पेपर निकालेगा। अगर वो चेंज करता है क्वेश्चन, सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, देन वो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी बढ़ जाएगी एंड हर किसी का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो आई थिंक अभी तो एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। मैटर करती है ना। अगर हम ये देखें नॉलेज जो कि है, जो हमारे पेरेंट्स जो हमें सोच करते हैं। guys let's speak one at a time, right? Carry on. Okay, Take Surendra as a charge. Let the Surendra will speak. Surendra, go ahead. Yeah, थैंक्स। ये बोलना चाह रहा हूँ, जो जनरली अपना जो स्टूडेंट बॉडी है, आप बोल रहे हैं कि वो कॉम्पिटिटिव की तरफ जाता है, बट हम जैसे सिर्फ आप हायर इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ सोच रहे हैं, जैसे कि आईआईटी हो गई, उनके अंदर जैसे जो आप सीईओ की बात कर रहे हो तो फॉरेन आईआईटी इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं। वही अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की सोचे तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक जो एजुकेशन पॉलिसी में कमी लगती है। वहाँ के अगर प्रोफेसरशिप देखेगा तो इंटरेस्टेड नहीं होते स्टूडेंट्स को नॉलेज डिलीवर करने के लिए। मुझे एक पॉइंट कहीं ना कहीं ये लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा जो अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको जो मनी के अलावा उनको एजुकेशन डिलीवर करने में भी ध्यान रखना चाहिए। मैं मॉडिफाई करूंगा सुरेंद्र के पॉइंट को। सुरेंद्र ने एक अच्छा पॉइंट रखा है। बेसिकली जो सीईओज निकले हैं वो आईआईटी से, लेकिन सत्या नंडेला आईआईटी से नहीं भी है, तो ये भी पॉइंट है। जिसे करना रहता है वो टायर 2 टायर 1 कॉलेज से, वो कहीं से भी करता है। मैं एग्री करूंगा सुरेंद्र के पॉइंट से कि हमें टायर 2 और टायर 3 कॉलेज की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इन्होंने बोला कि प्राइवेट कॉलेज है वहां से अच्छे लोग नहीं निकल पा रहे हैं, बट हमें कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि जो भी हमने स्कूलिंग की है मोस्टली हम लोग प्राइवेट कॉलेज से थे, तो मतलब प्राइवेट स्कूल से थे। तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट और ऐसे कुछ आईआईटी का कुछ बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये हमें हमारी सोच है कि अगर आईआईटी से है तो अच्छा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एज ए आईआईटीएन मैं भी इधर हूँ, ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर मैंने बीटेक की है, मैंने लाइक नॉर्मल कॉलेज से, बट आईआईटी भी सेम, ज्यादा डिफरेंट अप्रोच नहीं है। बट हमारा पॉइंट ये है कि इंडियन एजुकेशन इज ओनली फॉर डिग्री, नॉट फॉर नॉलेज। अगर हमें ये देखा जाए कि हमारी यहाँ पे बेसिक अपब्रिंगिंग में ही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं हमको नंबर लाना है, हमको नहीं हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा परसेंटेज, बेटा इतना नंबर लाना है, इतना नंबर लाना है। तो हमें ये फोर्स किया जाता है कि नहीं तुम इन चीज़ों को रट जाओ किसी तरीके से। और एक तरफ से हमें कोचिंग में भी डाला जाता है, तो कोचिंग वाले भी हमें इसी तरीके से फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें ये चीज़ रटना है। तो हम रटने पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं रदर देन गेनिंग नॉलेज। और मेरे ओपिनियन में इंडियन सोसाइटी एक्चुअली डेवलप हो जाता है, लेकिन अगर वी आर नेग्लेक्टिंग ना मिले। रुकिए, let him complete वो the guy, let him complete, go ahead। तो हमारे बेसिक एजुकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, शुरुआत में हम रटने पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं रदर देन गेनिंग नॉलेज। फिर हम जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में भी हमारा यही फोकस रहता है कि हमें किसी तरह से ज़्यादा सीजीपीए लाना है या फिर ऐसा कुछ करना है, तो फिर हम यहाँ पे लैग करने लगते हैं नॉलेज में। तो और मैं एग्री करूंगा ये पॉइंट से, थोड़ा मॉडिफाई भी करना चाहूंगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा ये पॉइंट को। एक्चुअली आपने जो बोल रहे हो वो काफी हद तक सही है। हमारे पेरेंट्स की भी मेंटेलिटी यही है कि बच्चा अगर मार्क्स ला रहा है तो वो होशियार है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये नहीं चलता है, स्किल्स चलती है। तो मैं एग्री करूंगा ये चीज से आपको। Actually, the जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग डॉक्टर्स करने जो भी जाते हैं, तो वी कैन सी अवर सुपीरियर पर्सन में बनाया है। Guys, let us speak though. Let them speak who hasn't spoken yet. देखिए गाइस, एक मिनट, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट को भी मौका मिला जाए जिन्होंने those three people are speaking again and again. They should let other people to speak. Wait guys, yes मैं आपको बता देता हूं where the Indian education system. Wait guys, wait, give me 2 minutes, 1 minute only guys। आई थिंक सो आज काफी लोग न्यू है तो इन्हें शायद पता नहीं है जीडी का रूल्स। जीडी में अगर कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसके पॉइंट कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद में आप अपना पॉइंट स्टार्ट करिए।
ये GD है, group discussion. It is not a debate. Group discussion and debate both are different things. So act like a GD, not like a debate. Okay. So let everyone speaks. In start only, Saurav sir said that everyone has to take equal participation. Okay. So carry on, guys. Yeah, I want to add मैं the यहाँ पे point एक which पॉइंट everyone रखना is चाहता हूँ सर। neglecting here, that in our education system, we are neglecting that point, that our rigorous homeworks and exam are teaching us that we can handle the rigorous pressure during the job role. We are neglecting that part in our education system. I am not saying that our notebooks are not capable of carrying knowledge. Our intent are wrong towards our notebooks. Our जी मैं curriculum और एक should be बात ऐड करना improved चाहता हूँ, regarding that. I am जैसे completely agreeing with my brother's point that our curriculum should be improved regarding that. Students should be given internship opportunity. They should be taken to the industries. They should be given more exploration toward the industries, that what is going on in the industries, what is going outside in the outside world, not in the schools only. So they will have better interest toward their education, and they should not be only judged on the theoretical part. They should be judged on the practical part, on the internship part, on all of the basis, on the on their games as well. They should learn on everything, not on only theoretical. सिद्धांत Yes, इंडिया में exactly. I would like अभी to अभी add अभी one मैं more कुछ point in रिसेंटली that. रिसर्च की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अभी अभी रिसेंट में कुछ स्टडी सामने आई हैं जिसमें बताया गया कि अभी जो इंडियन जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो सिलेबस वगैरह हैं वो इतने ओल्ड हो चुके हैं कि जो उसमें पढ़ाया जाता है वो अभी वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, वो अभी उसका यूज नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। तो वो जो सिलेबस है उसे हमें चेंज करना है, जो कि अभी करंट में यूज में है इन द वर्ल्ड। तो हमें उस पर भी बहुत ज्यादा वो देखना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम अभी उस पर फोकस नहीं कर रहा है, वो अभी भी पुराने सिलेबस वगैरह को आगे बढ़ाता जा रहा है, जिसका कि जो कि मोस्टली ऑब्सोलेट हो चुका है। अच्छा guys wait first we have to cover the conventional things. Wait. So this is more like going into like a fish market, I'll be very honest. Okay, last 4 minutes, come to a conclusion. There's a lot of things that we're doing wrong. I would like to conclude come that to a our conclusion. policy is not perfect. Our policy is not perfect. Sir, there is there is, I think, there is improvement, when we like see the skill development should foreign be added policy, to so there is a one-to-one interaction. When we see the foreign policy, there is a one-to-one interaction. But due to population of Indian students or that reason in our college, so there is a less जो लोग प्रोफेसर है वो इतना रिजिड स्ट्रक्चर होता है कोर्स, जिसकी वजह से वो फोकस ही नहीं कर पाते उन चीज पे। और दूसरी थिंग है कि जो सोसाइटी का प्रेशर है उसकी वजह से हर कोई चाहता है कि उसको जॉब मिले जल्दी। सो दे ओनली वांट फॉर डिग्री, नॉट फॉर गेनिंग नॉलेज। दैट्स ऑल। So it's final, right? No, I would like to add one point that our policy is not perfect, but there is a scope of improvement, like skill development, and also the focus on the area beyond the academics, like sports and music should be added to the course, so that a person who need to make his career into sports and the music like things, and there should be things added to our course also, so that they do not need to series other subjects. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि कंक्लूजन में आपको नए पॉइंट्स नहीं बोलने, बट जो जिस हिसाब से जो डिस्कशन चला है, मुझे ये लगता है कि जो करिकुलम्स चल रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच ज़्यादा सही रहेगा। और मैं ये मतलब यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करिकुलम्स में चेंज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और ये एक बेटर हो सकता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। Yes, I agree with you. एक और बात कन्वेंशनल थिंग्स अपनी नोटबुक से नहीं रिमूव कर सकते। अगर हमने कन्वेंशनल थिंग्स से रिमूव कर दे तो हमारी लाइक रिसर्च बेस्ड कैपेसिटी हो जाएगी कंट्री की। अगर हम कन्वेंशनल चीजें ही नहीं पढ़ेंगे ना इंजीनियरिंग में, तो हम लोग आगे रिसर्च ही नहीं कर पाएंगे। क्या फायदा हमें कास्टिंग और वेल्डिंग नहीं आती हो, हम लोग Okay guys, let's wrap up. अब मुझे बहुत सारे conclusion, not for discussion, bro. Right now we are for conclusion. Exactly. So that was the thing. Anyways, no. Let's wrap it up. There's a lot of let me tell you a lot of things. There are a lot of mistakes out there. Sure. So as as Kalpesh was saying, I guess that it was a conclusion. It was not a discussion. So in a conclusion, you make a statement that is you're concluding that yes,
The topic was agreed by many of the participants, stating the points. This were the good points. Not fighting over there. In conclusion, you always give a conclusive कि हाँ ये हुआ है, अब मैं इस चीज को एग्री करता हूँ या फिर मैं इस चीज को एग्री नहीं करता हूँ. Yes और no पे आंसर होता है कंक्लूजन. अगर कंक्लूजन में भी अगर आप सेम चीज ही बता रहे हो तो फिर कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ? अगर आप कंक्लूजन हमेशा yes और no में होता है, हमेशा कि हाँ मैं जो बंदा कंक्लूजन दे रहा है वो बंदा अकेले अपने लिए कंक्लूजन नहीं दे रहा, वो एज ए टीम के लिए दे रहा है. मैंने कहा था लीडरशिप स्किल्स शो करो, इसलिए मैंने बोला था. ठीक है. सो एनीवेज पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं. जिसने फर्स्ट स्टार्ट किया था, द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड, आपने स्टार्ट किया इंग्लिश में एंड स्विच किया हिंदी में. आपने स्टार्ट किया इंग्लिश में एंड स्विच टू हिंदी. दैट इज अ रॉन्ग थिंग, रॉन्ग अप्रोच. आइदर आप हिंदी में ही स्टार्ट करो या फिर इंग्लिश में स्टार्ट करो, बिकॉज दैट वाज द स्टार्टिंग स्टेटमेंट. नहीं, स्टार्टिंग स्टेटमेंट है. कोई भी कंपनी हो, आप स्टार्टिंग एक लैंग्वेज में करो. होता है कि अच्छा पूरा एक ही, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में. हाँ, आप स्विच मत करो, फिर वो दिख जाता है ना. मैंने कैसे पकड़ा इसको, क्योंकि मेरे को दिख रहा है वो चीज. तो वो क्या दिखा रहा है पता है? वही चीज ये दिखा रहा है कि स्टार्टिंग में आप कॉन्फिडेंट थे, फिर आप डर गए, इसीलिए आपने लैंग्वेज, आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में स्विच हुए हो. दिस इज द इम्प्लीकेशन. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी में बात मत करो, करो तो फिर आप स्टार्टिंग में हिंदी से ही स्टार्ट करो. ठीक है. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ हिंदी मत करो. मिक्स लैंग्वेज नॉट अलाउड. मिक्स लैंग्वेज यूज नहीं किया जा कर सकते हैं, बट उससे क्या है ना, सामने वाला जो एचआर बैठा है ना, वो आपको पकड़ लेगा अच्छे से कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो. ये प्रॉब्लम है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो. प्रॉब्लम ये है कि उससे आप ये शो कर रहे हो, आप अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट में ये शो कर रहे हो कि इनिशियली जैसे क्या हुआ, इनिशियली इसने इंग्लिश में स्टार्ट किया, उससे ये दिखाया कि हाँ बिकॉज आई एम द ओपनिंग स्टेटमेंट, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ. फिर धीरे धीरे जब लैंग्वेज स्विच हुआ ना, उससे ये दिख रहा है कि मेरे पास क्योंकि पॉइंट नहीं है, तो मैं कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल स्पेस में रखने के लिए मैंने हिंदी में बात किया. तो ये चीज दिख रहा है ना कि आप अंडर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो विद द टाइम. तो ऐसा मत करो. इसलिए एक ही लैंग्वेज, आइदर इंग्लिश और हिंदी. फिर जिसने स्टार्ट किया था उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में ही दोनों साइड ले लिया, यस भी बोला, नो भी बोला. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ग्रुप डिस्कशन में ऑलवेज एक साइड लेना होता है, आइदर यस पार्ट या फिर नो पार्ट. अगर आपने यस वाले साइड ले रहे हो तो यस वाले साइड से चिपके रहो. आप ऐसा नहीं स्विच रोल स्विच नहीं कर सकते आप. ठीक है. आप कभी भी डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन में कभी भी रोल स्विच नहीं कर सकते हो. आपको हमेशा एक ही साइड लेना पड़ेगा, यस और नो, जब तक कि वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ना हो. जैसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जैसा डिफाइन द ग्रुप डिस्कशन ऑन ब्लू, कलर ब्लू पे, तो ये क्योंकि काफी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, तो इसमें आप डबल साइड ले सकते हो. लेकिन जहाँ पे कंक्लूसिव टॉपिक्स हो रहे हैं, जैसे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए फायदा है, तो इट कैन बी यस, इट कैन बी नो. तो ऐसे केसेस में आपको वन साइड ही लेना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी वेरी नेगेटिव पॉइंट जो उसने फर्स्ट स्टार्ट किया. ठीक है. फिर जो सेकंड जिसने स्टार्ट किया था उसने बोला, एक डाउट. हाँ जी, हाँ. जो जैसे जो कुछ दोनों साइड में कुछ जो सेकंड साइड का ऑब्वियस पॉइंट्स है, वो हम उनको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे अभी इसी में आया कि आईआईटीज के मोस्टली जो ग्रेजुएट्स हैं वो सब बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं. राइट. डिग्री के साथ नॉलेज भी है, तो हम इसको अग्री और एड्रेस नहीं कर सकते. इसको कर सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ कर सकते हैं. मैं बताता हूँ. तो इसमें कैसा ना, इसमें आपको डिप्लोमेसी दिखाना होता है. आपको पता है कि वो लोग अच्छे हैं, तो इसको ना आपको मोल्ड करना पड़ेगा. ऐसे लैंग्वेजेस को हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेसी दिखा के बात कर, डिस्कस करना. बट आप उसको सपोर्ट मत करो. देयर इज एक तरह है, एक है आप सपोर्ट करना और एक है इसको आप उस पॉइंट को स्टेट करना. आपको पॉइंट स्टेट करना है. तो आप ऐसे बोलोगे कि yes there are people, yes there are students from the IITs who have done very great in the for the nation, but there also lies a problem in the education system. समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, मैंने उसको बताया कि हाँ कि वहाँ पे अच्छे लोग तो हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे लोगों की वजह से एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा है. प्रॉब्लम एक्चुअली है. समझ में आया? तो ऐसे करके बोलना है. इसमें आप क्या डिप्लोमेसी दिखा रहे हो. ठीक है. सेकेंड पर्सन जिसने बोला था, हाँ सर, कोई ऐसा टॉपिक हो जिसका पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा इम्पैक्ट करता हो, तो क्या उसमें नेगेटिव साइड जाना अच्छा होगा? मैंने क्या बोला, आप स्टार्टिंग से एक साइड लो. अगर किसी टॉपिक में, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो रेप करते हैं, तो रेप के लिए क्या डेथ पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं?
90% लोग बोलेंगे यस होना चाहिए, 90% लोग, तो आप हमेशा इसमें यस पे ही जाओ, ठीक है। लेकिन अब आप ये भी बोलोगे क्योंकि लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में है, तो ऐसे केस में फिर से आपको डिप्लोमेसी के साथ बोलना पड़ेगा कि यस वी बिलीव दैट देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लाइक डेथ केसेस एंड ऑल, बट वी आल्सो बिलीव देयर आल्सो द पर्सन हु हैव डन द रेपिस्ट आल्सो हैव सम human rights for himself or herself. So we also there should be some mechanism which can which can give them equal justice to them also. तो ऐसे करके डिप्लोमेसी यूज करो, जहाँ पे भी दिख रहा है ना कि लाइक उसका साइड भी अच्छा है इसका साइड भी अच्छा है, वहाँ पे यूज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वे ये दिखाने के लिए कि आपके पास नॉलेज है, आप दोनों साइड का नॉलेज है, बट आप अभी के लिए कोई एक साइड को चूज कर रहे हो, इसलिए हमेशा डिप्लोमेसी यूज करो, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था, सेकेंड पर्सन जिसने बोला था, सेकेंड पर्सन ने स्टेटमेंट में ऐसा चीज बोला, आई सपोर्ट माई फ्रेंड, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने ये बोला ना आई सपोर्ट माई फ्रेंड, इसके वजह से क्या होगा, जो फर्स्ट बंदे जिसने जो फर्स्ट कैंडिडेट था उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसने अच्छा स्टेटमेंट बोला है, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो ही इज नॉट अ लीडर, ही इज नॉट लीडिंग द ग्रुप। तो आप ना ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए, कभी भी ऐसे मत बोलो कि आई एग्री टू माय फ्रेंड पॉइंट, ऐसे नहीं। मतलब ऐसे केसेस में क्या, जब भी ऐसे स्टेटमेंट लोगे ना कि आई एग्री टू व्हाट द पर्सन सेड, आई एग्री टू व्हाट ही और सी सेड, इससे ये दिखा रहा है कि सामने वाले ने सही बोला, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे आप अपने लिए आए हो, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स लेना है। ऐसे केसेस में ऐसा मत बोलो, ऐसे केसेस में बोलना होता है कि आई एग्री टू सम ऑफ द पॉइंट्स, आई एग्री टू सम ऑफ द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स नहीं, भले उसने सारे पॉइंट सही बोले हो, भले उसने 100 के 100 पॉइंट सही बोलो, लेकिन आप उसको ऊंचा नहीं कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि हाँ उसने कुछ तो सही बोला है, पर उसमें से मैं मान रहा हूं। बट आप ऐसा बोलोगे ना कि आई सपोर्ट माय फ्रेंड, जो सेकंड जिन्होंने बोला था इस ग्रुप डिस्कशन में, ऐसा मत करना। आप अभी सच्चाई, ये दैट्स अ हार्श रियलिटी कि आप लोग यहाँ पे जॉब के लिए हो, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी नौकरी के लिए हो, ना कि अपने दोस्त की नौकरी के लिए हो, आप अपने लिए फाइट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मैंने फर्स्ट में ही बोला था, देयर शुड नॉट बी एनी कटिंग इन बिटवीन एंड रेजिंग द वॉइस, दोनों हुआ है। मछली बाजार नहीं बनाना है, आप लोग एक मैनेजर बनने वाले हो, इस एग्जाम के ये इंटरव्यू के बाद यू आर गोइंग टू बी मैनेजर, सो सम मैनेजरियल स्किल। ये सब मछली बेचने वाला ऐसा हरकतें मत करो, स्ट्रेट अवे पता है, अगर ऐसा करोगे ना, यूपीएससी में पहले जब ग्रुप डिस्कशन हुआ करता था यूपीएससी में, स्ट्रेट अवे वो लोग यूपीएससी में ग्रुप डिस्कशन बंद करवा देते थे, ऑल जितने भी लोग थे सबका खत्म, राइट अवे बंद हो जाता था। ऐसा हरकतें मत करो, मैंने पहले ही बोला था, डोंट कट एनीवन, तुम लोगों ने कट किया है। दूसरी बात, रेजिंग द वॉइस रेज करके क्या दिखाना चाह रहे हो, अच्छी चीज नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। किसी ने बोला था अबाउट प्रैक्टिकल क्लासेस एंड एनईपी पॉलिसी, बहुत अच्छा पॉइंट था, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट, जिसने भी बोला था वेरी गुड पॉइंट। फिर ग्रुप डिस्कशन में ये क्या तरीका है, एक दोस्त ने कहा था, दोस्त क्या है, दोस्त, बंदा, भाई, ब्रो, ब्रदर, ये सब स्टेटमेंट्स यूज हुए हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, दोस्त, बंदा, भाई, ब्रो एंड ब्रदर, ये क्या है, भाईचारा चल रहा है क्या यहाँ पे? आप लोग गेट एग्जाम देके एक मैनेजर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी एन असिस्टेंट मैनेजर, एनीथिंग इन अ मैनेजरियल पोजीशन। ये दोस्त भाई क्या है, आप लोग एक कलीग हो, मैं तो बोलूंगा कलीग भी नहीं बोलना चाहिए, वन ऑफ माय फ्रेंड भी है, मैक्सिमम लेवल तक फ्रेंड। बंदा, ये क्या है, बंदा, दोस्त, भाई, ब्रदर, ब्रो, ये सब स्टेटमेंट्स यूज हुए हैं। डोंट टॉक इन दिस टाइप ऑफ थिंग। अगर हिंदी में बोल रहे हो, सोचो, कुछ इनोवेटिव वर्ड सोचो, विच इज प्रोफेशनल, विच इज प्रोफेशनल। आप वहाँ पे जब इंटरव्यू लेने जाओगे, यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट हु इज कमिंग फॉर एन इंटरव्यू, नॉट समवन जो कोई एरा गैरा कोई भी नॉर्मल से एग्जाम देके जा रहा है। आपने गेट क्वालिफाई किया है, तो आप अपना पोटेंशियल दिखाओ। ये भाई बंदा, ये सब क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल चीज़ है। अगर आप इंग्लिश में वन ऑफ द कैंडिडेट बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, मैं तो बोलूँगा कलीग बोलो। अगर आपको प्रोफेशनल दिखा ना, कलीग बोलो, कलीग इज द बेस्ट वर्ड। कि आप अभी से मानते हो कि यू आर राइट फॉर दिस पोजीशन, तो कलीग बोलो, यूज द वर्ड कलीग, ठीक है। हिंदी में मुझे क्या बोलना मेरे को नहीं पता, मैं इतना हिंदी में स्ट्रांग नहीं हूँ, तो प्लीज एक बार थोड़ा देख लेना, मेरे से वेरीफाई करवा लेना। बट इफ यू आर यूजिंग द वर्ड इंग्लिश, गो फॉर कलीग, ठीक है।
हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सहयोगी बोल सकते हैं। कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, किसी ने मॉनिटरी बेनिफिट्स के बारे में बताया था कि लाइक लोग प्राइवेट कॉलेज वालों को पैसे के जगह पे अपार्ट फ्रॉम पैसे दे शुड वर्क ऑन द एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना चाहिए, ना कि मनी मेकिंग पॉलिसी में, व्हिच वाज अ वेरी गुड पॉइंट अगेन, ठीक है। फिर किसी ने बोला था एज एन IITian मैं भी यहाँ पे हूँ, ठीक है, डोंट यूज दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। अब बताता हूँ क्यों। अगर सामने वाला जो तुम्हारा सामने बैठा है वो IIT का नहीं निकला, वो प्राइवेट कॉलेज का निकला, तो वो तो ले लेगा तुम्हारे मजे, वो तुमको रुला देगा, लिटरली रुला देगा कि तुमने कैसे ये स्टेटमेंट यूज किया कि एज एन IIT मैं यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब ये दिखाना चाह रहे फिर मैं IIT का हूँ, मतलब क्या मेरे को सब कुछ आता है? नहीं, सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं करना है। यू डोंट नो, आप पता ही नहीं है कि सामने पैनल में जो बंदा बैठा है वो IIT का है, क्या पता वो हार्वर्ड का निकला, वो हार्वर्ड का निकला, वो बोलेगा क्या फालतू लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो तो ऐसे जज करेगा ना। और मान लो क्या पता है वो बंदा कोई टायर 3 कॉलेज का हो, तो वो ये बोलेगा ना कि साला मेरे को ईगो दिखा रहा है, हाँ मैं IIT का नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज कोई सामने वाला बंदा IIT का बैठा है वो ऐसा बोलेगा। तो ऐसे पर्सनल कमिटमेंट्स पे मत जाना। दिस आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स इन NGD। कभी भी नहीं, जैसे कभी भी जैसे सपोज कोई ऐसा टॉपिक आया रिलीजियन को लेके, हिंदू मुस्लिम, कभी भी ना ऐसा वन साइडेड साइड कभी भी मत बोलना। दिस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यू आर सेइंग। आपको पता ही नहीं, सामने वाला शायद हो सकता है कि वो बंदा मुस्लिम हो और आपने उसके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, हो सकता है, देयर माइट इज अ हाई चांसेस, आपको पता ही नहीं, क्योंकि यू हैव नो आइडिया ना सामने वाला क्या किस लेवल का बैठा है। तो ऐसे वर्ड्स मत यूज करना कि एज एन IITian मैं भी यहाँ पे हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है, नहीं, डोंट यूज दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। किसी ने ये बोला था कोचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में और इंटर्नशिप एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, व्हिच वाज वेरी अ गुड पॉइंट अगेन, ठीक है। फिर किसी ने कहा था कि रिसेंट रिसर्च स्टडी ने बताया ये, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में ना अगर HR थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब जो HR देख रहा है, तो आपसे वहीं पे रुकवा कर पूछेगा कि किसने बताया। रिसेंट स्टडी मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो रिसर्च बॉडी है, बहुत सारे रिसर्च के बॉडीज होते हैं, यूएन बॉडीज है, रॉयटर्स है, ठीक है, वॉच डॉग है, ठीक है, कौन, तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा। क्योंकि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मान लो मेरे IIT खड़गपुर में किसी ने रिसर्च किया, ठीक है, वो रिसर्च एक वैलिड है क्योंकि दैट इज अ वैलिड सोर्स ऑफ रिसर्च। बट मान लो कोई एक नॉर्मल 5 लोग मिलके एक रिसर्च करके बताते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इज बेग, तो दैट इज नॉट एन समथिंग लीगल सोर्सेबल रिसोर्स। आप उसको वैलिड नहीं कर सकते, आप उसको नहीं कह सकते पब्लिकली, क्योंकि वो बंदा गलत भी रिसर्च कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो आपको हमेशा सोर्सेज बताने पड़ेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से ऐसा हुआ, यूएन वॉचडॉग के हिसाब से ऐसा हुआ, रॉयटर्स में ऐसा आया, ठीक है। तो आपको हमेशा जब भी आप ऐसा बोलते हो ना कि रिसेंट स्टडीज, तो आपको बोलना है रिसेंट स्टडी ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया शोड ऐसा वैसा, या फिर रिसेंट स्टडीज ऑफ IIT शोज दैट द एजुकेशन सिस्टम हैज फॉलन बाय दिस ब्ला, ठीक है। तो हमेशा आप सोर्स साइट करना, उसको लोग बोलते हैं सोर्स साइटेशन, ठीक है। तो ऐसे हमेशा सोर्स को आप बताना। कंक्लूजन बकवास था, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, कंक्लूजन में जीरो, एकदम जीरो, एकदम। कंक्लूजन हमेशा होना चाहिए कि आप फाइनली कंक्लूड कर, जो भी टॉपिक हुआ, टॉपिक में 10 लोगों ने हाँ बोला, 5 लोगों ने ना बोला, तो कंक्लूजन होगा, क्योंकि 10 लोगों ने हाँ बोला, 5 लोगों ने ना बोला, तो कंक्लूजन विल बी यस। मेजोरिटी का कंक्लूजन हमेशा एक होता है, तो आपको यस बोल के दोनों साइड का पॉइंट्स को जस्टिफाई करना है। तो जो बंदा जो भी बंदा ये सोचता है कि मुझे कंक्लूड करना है अभी से, लाइक ही इज थिंकिंग कि मैंने अगर स्टार्ट नहीं किया तो मुझे कंक्लूड करना है, मेक श्योर यू लिसन प्रॉपर्ली, राइट, लिखने का हैबिट बनाओ। GD में एक कहावत है कि अगर आपको पॉइंट्स नहीं पता ना तो सुनो, लिसनिंग इज अ वेरी गुड क्वालिटी इन अ GD, और उसी का पॉइंट को घुमा के बोलो। तो ये चीज ध्यान रखना, और लिखो, जब तक लिखोगे नहीं ना कि सामने वाला, सपोज कोई ऐसा एकदम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ गया, एकदम ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, आपको कोई आइडिया पता नहीं है, लाइक लिटरली कोई पता नहीं है, तो उस केस में ना योर ईयर एंड योर राइटिंग स्किल विल हेल्प यू। आप कितने अच्छे से सुनते हो सामने वाले ने क्या क्या पॉइंट बोला, आप उसी पॉइंट को घुमा फिरा के अच्छे से मोल्ड करके आप बोलोगे। तो कंक्लूजन में हमेशा याद रखना, जो भी डिस्कशन हुआ उसका समरी इन अ
येस नो फॉर्मेट कि हाँ लोगों ने ऐसा ऐसा बोला, बस खत्म। ठीक है, कल्पेश ने बोला था कि मैं डिसएग्री करता हूँ, जैसे कल्पेश ने ये लास्ट में स्टेटमेंट दिया था, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं डिसएग्री करता हूँ, बट मैं यहाँ पे वर्ड मैं आया हुआ है, मैं नहीं होगा यहाँ पे, अगर द ग्रुप डिसएग्रीज। कल्पेश इफ यू आर लिसनिंग, ऐसे वर्ड यूज मत करना, मैं नहीं होगा, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन है, यहाँ पे एज यू आर लीडर तो आपको बोलना पड़ेगा द ग्रुप डिसएग्रीज टू द पॉइंट ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, ओके, यस सर। तो दैट इज ऑल, यू नो। हाँ एक मिनट, सो दैट इज ऑल। एक मैं सुनूंगा। तो दैट इज ऑल, यू नो, इतना मैं पॉइंट्स जॉट डाउन कर पाया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग के पास टाइम है तो एक और जीडी कर सकते हैं 15 मिनट। यस यस सर, ऑब्वियसली हाँ ऑब्वियसली करेंगे। हाँ, तो कोई कुछ डाउट पूछ रहा था, मेरे को एक बार पहले डाउट क्लियर कर देता। हाँ सर। सर जैसे मुझे लगता है कि आई हैड अ सर राइटिंग इज अलाउड इन जीडी? हाँ मिलेगा आपको प्रॉपर नोटपैड पेन मिलेगा, आपको नोटपैड एंड पेन मिलता है जीडी में। सो आई थिंक आई हैड अ गुड सर, लेकिन मैंने जितनी बार बोलने की कोशिश करी हर बार कोई और बोल गया बीच में, और वही रकस क्रिएट ना हो और वो सब्जी मंडी ना बने, तो इसलिए मैं चुप हो गया। तो अब ये मेरे पार्ट पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, में भी कुछ पॉइंट्स थे सर, अगर मैं जबरदस्ती बोलूंगा तो फिर वो भी नेगेटिव ही है। और तो आप वेट करो, जैसे ही आपको दिख रहा है ना कि सामने वाला बंदा मतलब खत्म करने वाला है, या फिर इसको लग रहा है, आपको फील होगा कि नो अब इसके लिए रुकने वाला है, पट से घुसो। और अगर नहीं होगा ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है कंक्लूजन देना। ये चीज याद रखना, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो भी बंदा देना उसको हमेशा, अगर वो अच्छे से उसने दिया तो ही कैन प्ले ह्यूज रोल इन ग्रुप डिस्कशन। उसका रीजन ऐसा है क्योंकि उसने अच्छे से सुना है, इवन उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने अच्छे से सुना है, तो वो सबका पॉइंट्स को एक समराइज करके देगा। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आपने पूरे डिस्कशन में अच्छे से बात नहीं कर पाए या फिर सिर्फ एक ही बार बोल पाए, तो ट्राई करना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। सर जीडी के ड्यूरिंग हम लोग वेट ही करते रह गए। हेलो सर। हाँ और सर जो हम जीडी दे रहे थे, ड्यूरिंग दैट जीडी कैन वी नोट द पॉइंट एंड कैन वी सी द पेपर, लाइक जो हमने लिखा वो जीडी के दौरान देख सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, अलाउड है। आपको एक प्रॉपर नोटपैड और एक पेन मिलेगा, आप उसको जितना यूज करना है करो। नहीं, अगर जीडी में जैसे हम लोग सुनने के बाद हमें कोई और पॉइंट मिल गया तो कैन वी राइट दैट? हाँ यस यू कैन राइट दैट, यू हैव। देखो तो होता है क्या, मैं बताता हूँ। आप जीडी में जाओगे, एक यू मतलब जैसे यू होता है ना, यू साइज का चेयर बैठाया रहेगा, और आप सबको एक नोटपैड और एक वो मिलेगा, एक नोटपैड एंड आपको और एक क्या बताऊँ, एक नोटपैड एंड एक मिनट रुकना प्लीज। गाइस आई थिंक सो आप सभी लोग आज न्यू है, कुछ लोगों को मैं छोड़कर बताऊं, जैसे दीपक, गोविंद, सिद्धांत एंड सुरेंद्र, पंकज। सो ये लोग बेसिकली प्रॉपर थे, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है इनका आप देख लीजिएगा। इवन नरेश भी, जो पॉइंट्स अभी हम लोग 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, ये लोग उसी पॉइंट्स पे थे। बट जो न्यू ज्वाइनिंग्स थे आज, रिकेश वाज आल्सो अप टू द पॉइंट। जैसे न्यू ज्वाइनिंग में अगर मैं बात करूं तो अरुण था। अरुण, वेयर इज अरुण? ही हैज बीन राइट। राहुल, मंथन, yes sir, I'm here. मंथन एंड yes. हाँ, तो आप लोग जो न्यू थे ना, आप लोग कर रहे थे मच्छी बाजार। ओके, बाकी कोई नहीं कर रहा था, जो भी न्यू ज्वाइनिंग थे। आप लोग किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। देखो ग्रुप डिस्कशन में आप सभी लोगों को बोलने देना है। हम लोग 3-4 दिन से यही चीज बता रहे हैं। आप लोग अगर मैं नहीं बताया होगा तो आप लोग मुझे काउंटर कर सकता है, जितने लोग अटेंड कर रहे थे। सिद्धांत आप बताइए, क्या यही पॉइंट्स हम बोल नहीं रहे 3-4 दिन से? यस सर, यही पॉइंट्स चल रहे थे सर। आज सब लोग काउंटर ही करते चले गए, है ना सर? आज ये रीजन ये भी है ना, ग्रुप ज्यादा है बड़ा आज। नहीं, ग्रुप बड़े होने से बात नहीं है। ग्रुप बड़े होने से दिक्कत नहीं होती है। पहले दिन भी ग्रुप बड़ा था। अगर आपको अपनी आवाज रेस करनी है तो आप अपनी आवाज रेस करिए, दूसरे की ना दबाकर। वही चीज सर ने भी वही चीज तो सर ऐसे कर सकते हैं, ना, सबको बोलने का एक बार मौका दे। जब तक वो कोई सब ने बोल पाए तब तक दोबारा कोई पॉइंट नहीं रखेगा अपना। एक मिनट, सर का मैसेज आया है कुछ।
Let me check. मैंने डीजे का मुझे आज मेरा भी लैपटॉप धोखा दे रहा है, लैपटॉप फोन दोनों धोखा दे रहा है मेरे। अच्छा एक मिनट दीजिएगा, मैंने सर की तरफ का इलेक्ट्रिसिटी शायद चला गया है। ओके तो बट स्टिल देखो अगर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट तो करेंगे, सर कनेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ तो मैं देखो गाइस मैं आप लोग को पहले फिर से बता देता हूँ। पिछले 3-4 दिन से हम लोग यही चीज बोल रहे हैं कि आप लोगों को बोलने का मौका देना है हर एक व्यक्ति। उत्कर्ष का शायद मोबाइल का चल नहीं रहा था, इनका नाम क्या है, अरुण। अरुण आप बोल रहे थे बट शायद आपकी आवाज को सुन नहीं रहा था। ठीक है सर को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले 1 मिनट दीजिए। सबसे पहले आप लोग मुझे आज रिव्यू करिए, मजा आया सेशन में, कितने लोगों को मजा आया? अरे हाँ या ना कुछ तो बोले, रिव्यू करिए। हाँ सर I want to make some point. I want to say some points. Yes. कि हम लोग जैसे मैं जीडी कर रहा हूँ कभी से, ठीक है, तो अभी जो सब न्यू फेसेस दिख रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। जब हम जाएंगे रियल जीडी में तो हमें लगेगा सब एकदम न्यू लोग होंगे तो हम बोलने में आसानी रहेगी। सो इट्स वेरी गुड। और सारे के सारे न्यू व्यक्ति है, बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिव्यू बताइए। आप लोग को फीडबैक दे रहे हैं, अब आप लोग हमें फीडबैक दीजिए। मजा आ रहा है मार्गदर्शन के साथ में? एक्चुअली बहुत अच्छा था सर, पहले से अटेंड करना चाहिए। फर्स्ट डे बहुत सीखने को मिला। यस यस सच्चिदानंद। सर आपने बोला करना है और वेट करना है अगले को खत्म करने। अगर हम ऐसा करेंगे, तो वो 10 से 15 मिनट मिलता है तो फिर हमें तो कूदना ही होगा। गाइस सर आ रहे हो क्या? रीजॉइन कर रहे हैं आप लोग, लीव क्यों कर रहे हो? ये समझ नहीं आ रहा है सर। नेटवर्क इशू की वजह से लोग लीव हो रहे थे। हाँ नेटवर्क इशू हो रहा था। नेटवर्क इशू सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ऐसा लगा कि रिव्यू बहुत बेटर लगा। जो रिव्यू का सर ने जिस तरीके से बताया ना, बहुत बेस्ट लगा मुझे आज। हाँ सर कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए सर, जैसे कलीग्स वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, ग्रुप डिसएग्रीज, वो लास्ट में जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना वी वर मिसिंग, वो पॉइंट्स बहुत अच्छे मालूम पड़े आज। ये शायद सिद्धांत आप आज नहीं थे, मतलब जिस जीडी में मैंने बताया था ना ये चीज, उसने संतोष जब थे तो उसी वाले जीडी में मैंने ये पॉइंट बताया था कि आप लोगों को भाई ये सब नहीं बोलना है करके, इनफॉर्मल नहीं होना है। पूछ लीजिए गोविंद था उस वाले जीडी में। ओके सर मैं शायद था नहीं सर वहां उस समय। हाँ उस जीडी में आप नहीं थे। ओके सर। ये भी दीपक से पूछिएगा, दीपक है प्रोस और कॉन्स। सोर्स साइटेशन और स्टिक टू द पॉइंट वाला पॉइंट भी अच्छा था। यस और नो कंक्लूजन वाला स्टेट भी अच्छा। हाँ ये सर जैसे पॉजिटिव साइड लेना है या नेगेटिव साइड लेना है, वो चीज अच्छा था सर। ये डिप्लोमेसी अच्छी बताई थी। हाँ डिप्लोमेसी बहुत सबसे बेस्ट पॉइंट तो वही लगा, डिप्लोमेसी वाला। और कुछ नया लर्न करा आज, काफी मिला सीखने। अच्छा सौरभ कुमार सर को मैं ज्वाइन कैसे करवाऊं? एक्चुअल जीडी में कितने मेंबर हो गए सर? 8 मेंबर या फिर 12 मेंबर? 8 होते सर आईओसी में सर। 8 या फिर 12। मैं बता रहा ना हम लोग 8 ही मेंबर का जीडी ले रहे हैं, पूछ लीजिए किसी को भी। आज ज्यादा आ गए क्योंकि हमें डाउट रहता है कि कभी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे 15 का होता है। ओके